Hello and welcome to Examshala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 15th of June 2021. But before getting started, as always, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. You can also download our application from the Play Store sector, where in the store section you can get multiple exciting courses for SBI clerk, UPSC, GPSC, RRB, Group D exams and whatnot. In that you will be provided free study materials and PDF, demo classes, mock test, live classes as well as online doubt solving sessions. So kindly make Examshala your better companion for the preparation of government examinations. Now moving on to the main video. First article or first news about the rising WPI or CPI both. Due to the COVID-19 pandemic and during the supply demand shortage and mismatch, it has led to the increase in the inflation at the both level, that is at the wholesale as well as the inflation at the consumer level. So भारत में खास करके कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद, जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि फर्स्ट वेव के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी, बट ड्यू टू the prolonged second wave and the plateau of the peaking cases, this led to increase in the demand supply fluctuation and which resulted into the formation of a highly rate CPI, that is consumer price index, जो कि डायरेक्टली हम कहते हैं जिसको इन्फ्लेशन में मेजर करता है, जो कि सीधा सीधा रिटेल प्राइसेस से मेजर करता है. और उसके दो कारण हुए. सबसे बड़ा कारण हुआ दैट इज़ द फ्यूल एंड फूड प्राइजेस. तो फ्यूल और फूड प्राइजेस के इंक्रीमेंट की वजह से देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड जो बेंचमार्क थी, जो हम बहुत पहले से चला रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो डिमांड थी, ठीक है, कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बीच में रखना है, दैट इज़ मिनिमम 2 to 6%. नाउ इट हैज़ ब्रीच दैट मार्क and this is going to be not of the comfort zone. और जो मॉनेटरी पॉलिटी का कमेटी है, that is based on the RBI's recommendation, it has to do certain very difficult tasks. ठीक है. सो डब्ल्यू की होलसेल प्राइस इंडेक्स तो काफ़ी समय से बढ़ता ही आ रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 6% से ज़्यादा हो गया. और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो इसकी प्रॉब्लम यू कैन सी डायरेक्टली इन द इकोनॉमी. देन देयर विल फर्दर राइज इन द प्राइजेस, एंड व्हेन देयर विल फर्दर राइज इन द प्राइजेस, it will lead to the getting value of the money will decrease, and when the value of the money will decrease, it will lead to higher taxing rates, which at the same time is not good for the development of especially the smaller sector of the economies like MSMEs and cottage industry, जो कि इस टाइम पे सेकेंड वेव के बाद when we are in the growth of recovery, what we need to do is MSMEs and cottage industry need to work harder so that we can accommodate more and more persons. So employment level, because we can see 60% of the employment generation in India is by the, अगर फॉर्मल सेक्टर की जो MSME की हम बात करें तो 60% जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSME सेक्टर में ही आती है. और अगर MSME नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा. और जो रूरल इकॉनमी है एंड द टाउन इकॉनमी, दैट इज़ rural or town, suburban economy and the town economy will not flourish, and that will further increase in the inflation rate. So it is very matter of concern, and that is food component जो है, because of the rising COVID-19 pandemic, जो food products है, the processed food products are not being available to the markets and there is decrement in the supply. So पहले क्या हुआ कि डिमांड में कमी आई, डिमांड को कम करने के लिए there was supply was forced out, and due to the lack of supply further there is an increase mismatch वजह से there has been increase. और उसी की जब हम बात कर रहे हैं तो we will discuss about the two different indexes, that is wholesale price index and consumer price index. Now what are those two things? So as for the name suggests, wholesale price index measures the amount at the wholesale level, at the market level, at the big commodity level, whereas the CPI, it indicates and monitors at the local level, retail level. So it amounts to the average change in the prices of the commodities at the wholesale level and it is at the retail level. ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक होता है, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेडर सेंट्रिक होता है. पब्लिशिंग ऑफिस कौन सी होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो प्रोवाइड करते हैं. और अभी जो पहले CSO प्रोवाइड करता था, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि इट कम्स अंडर द Ministry of Programming and Status Implementation and the Labor Bureau.
सो क्योंकि सीपीआई अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग होती है, सीपीआई मार्केट लेवल के लिए अलग होती है, सीपीआई डिफरेंट रीजन्स के लिए सीपीआई इज़ वेरी डिफरेंट. सो इट इज़ बीइंग इशूड बाय टू बॉडीज, दैट इज़ वन इज़ बाय लेबर बॉडी एंड अनदर इज़ बाय मोफ्सपी, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स. इसको इम्प्लीमेंट करती है अंडर द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस, CSO, जो अभी चलकर बन चुका है. पहले CSO और NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल एंड सम सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को मिलाकर देयर हैज़ बीन NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. और यही बॉडी CSO और NSO दोनों का काम देखती है. तो इट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड द रिजल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द NSO. कमोडिटीज़ क्या क्या है, तो इसमें सिर्फ होते हैं गुड्स. इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, यानी कि गुड्स अलॉन्ग विथ सर्विसेज लाइक हॉस्पिटैलिटी, टीचिंग, फैकल्टी एक्सेट्रा, ट्रैवलिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा. इन्फ्लेशन मेजरमेंट, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट इज़ एट द फाइनल स्टेज, यानी कि जो कंज्यूमर है डायरेक्ट व्हाट द एंड प्रोडक्ट पर क्या रेट पड़ रहा है उसको मेजर करता है CPI. और प्रोडक्शन रेट में फैक्ट्री से निकलने के बाद क्या रेट मिल रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज इज मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड इट इज़ द प्राइस आर पेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स. एंड सो सिंस द नेम इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सो इट विल पेड बाय द कंज्यूमर्स. इट इज़ डिफरेंट, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग CPI निकाली जाती है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग निकाली जाती है, लेबर्स के लिए अलग निकाली जाती है, फार्मिंग सेक्टर के लिए अलग निकाली जाती है, रूरल सेक्टर के लिए अलग होती है, और अर्बन सेक्टर के लिए अलग होती है. सो CPI इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंज्यूमर बेस. CPI इज़ कैलकुलेटेड ऑन दैट बेटर. एंड बेस ईयर जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2011-12 है, इसका 2012 है, लेकिन अभी भी ये अभी रिवाइज होने की बात चल रही है एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिवाइज. उसको हम वी आर गोइंग टू मेक इट एट 2016 और 17. Now, most of the commodities that includes in CPI is like communication, transportation, recreation. तो इनके अलावा भी बिकॉज गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं इन कंपैरिजन टू, और इसमें फ्यूल्स और फूड जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल्स, स्पेशली द फ्यूल्स, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द CPI, that is consumer price index. Now when we are talking about the monetary policy committee, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसका एकमात्र टास्क था कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 4 प्लस और -2%. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या चीज़? मॉनेटरी पॉलिसी को उर्जित पटेल कमेटी द्वारा गठन किया गया था 2014 के आसपास. एंड जब उर्जित पटेल वाज द वाइस डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द RBI, उनके अंडर देयर वाज अ कमेटी एंड एक कमेटी बनाई गई थी. दिस नेम ऑफ द कमेटी वाज MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, विच कंसिस्टेड ऑफ 6 members. ओके, 3 फ्रॉम द RBI एंड 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट. दैट इज़ 3 व्यक्तियों को सरकार, कोई भी एमिनेंट पर्सन को गवर्नमेंट विल नॉमिनेट, एंड अदर 3 पर्सन्स विल बी, उसमें से 2 होंगे, एक तो होगा RBI का गवर्नर खुद, दूसरे होंगे डेप्यूटी गवर्नर और तीसरे होंगे RBI के सेक्रेटरी. तो ये 3 लोग और बाकी के 3 लोग, इसमें से 3 और 2 5 की तो कमेटी बनने की, और गवर्नर जो होगा उसका चेयरमैन होगा, और गवर्नर के पास होगा द वीटो वोट, यानी कि व्हेन देयर इज़ अ कंसेंसस नहीं बनेंगे तो गवर्नर विल कास्ट अ वीटो वोट. गवर्नर के पास एक वीटो वोट भी होता है. दैट इज़ वाई इट, तो उसका बेसिक एम क्या था? सो द बेसिक एम वाज टू फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द RBI, सो दैट जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसको इस तरह से डिसाइड करना सो दैट जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 4 + 2- के बीच में है, जो इन्फ्लेशन टारगेट को डील करना है. सो दिस वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें से 6 लोग होते हैं, एक RBI जो का गवर्नर होता है, उसके अलावा 5, और गवर्नर के पास वीटो पावर भी होती है अगर इन केस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द वोट्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अनदर टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक, दैट इज़ GDP. नाउ नॉर्मली द नॉमिनल GDP जो कि न्यूज़ में रहती है, द रियल GDP विच इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट की हुई जो GDP हम मार्केट में रहते हैं. देन यू वुड हैव सीन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं बनती हैं उनका टोटल कम्युलेटिव प्राइस कितना होता है, दैट इज़ नोन एज द GDP ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. बट इज़ दैट GDP इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंट? क्या वो GDP उस देश की पूरी इकोनॉमिक प्रोसेस को बता देता है? सो इज़ इट दैट इंडिकेटिव? सो there has been various concerns about the GDP, and one of the major concern is about it is not including the informal sector. So informal sector is not included. So GDP was basically based on the formula of GVAs.
इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर से बांट दिया गया था, जैसे कि एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एक्सेट्रा, और उन सभी सब्जेक्ट्स के GVA दिखाए जाते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और उन सारे GVAs को ऐड करके फिर हम बनाते हैं GDP, यानी कंट्री की GDP कितनी हुई है। उसमें से फिर माइनस करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, तो फिर वी एडजस्ट इट बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस दैट यू माइट ऑल हैव स्टडीड इन द इकोनॉमिक्स, सो विल नॉट डिस्कस इट हियर, काइंडली रिफर टू रमेश सिंह द इकोनॉमिक बुक। बट व्हाट इज, अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो एट द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, सो इट कम्स अ नॉमिनल GDP दैट इज कॉल्ड द रियल GDP ग्रोथ। अगर नॉमिनल GDP से जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, सो यू माइट हैव हर्ड कि अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो वी हैव टू ग्रो विथ अ रेट ऑफ एटलीस्ट 15 to 16% GDP एनुअल, बट ये नॉमिनल GDP होती है। उसमें से इन्फ्लेशन को अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जो 4, 5, 6, 7% के आसपास माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट आता है कि यू हैव टू ग्रो विथ 9% और 9.2% और इवन 10%। सो दैट इज़ द रियल GDP यानी कि करंट इन्फ्लेशन। आज की महंगाई दर को GDP से माइनस कर देंगे तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रियल GDP। एंड नॉमिनल GDP यानी कि एक्चुअल, यानी कि पहले साल में, यानी कि सपोज करिए कि 2021 में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है 100 रुपीज़, एंड इन 2022 इट इज़ 150 रुपीज़, सो द डिफरेंस इज़ 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ से कितना परसेंट है, 50%। सो GDP ग्रोथ कितनी होगी, 50%। बट उसको फिर इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट करना होगा कि महंगाई घटी है बढ़ी है, एंड दैट इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में वो जो 50% इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 50 रुपये का इंक्रीज़ हुआ, तो उस 50 रुपये की वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है, कम है या बड़ी है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इन्फ्लेशन द रियल GDP इज़ कैलकुलेटेड, एंड बट स्टिल क्योंकि इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग मैनी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर्स, सो GDP इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिकेटिव, यानी कि किसी भी देश की आर्थिक हालत को पूर्ण रूप से GDP बताता है, ऐसा नहीं है। यस, इट accommodates a lot of sector, especially मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, बट उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं। सेकेंड, देर इज़ एन ऑलवेज अ डेफिनेशन और अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, where development is solely related to the numerology, that is increase in numbers, increase in data, increase in profits, but growth is something different। सो इन दोनों में चीज़ होती है कि हमको किस तरह के डेवलपमेंट के पास जाना है, जस्ट बेस्ड ऑन द नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, प्रॉफिट इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन टर्नओवर, और वी वांट टू सी द ह्यूमन वैल्यू, द एक्चुअल रियल डेवलपमेंट, द रियल ओवरऑल डेवलपमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो देयर हैज़ बीन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो इकोनॉमी, जो GDP हम बना रहे हैं, वाट एवर द प्रोडक्शन, वाट एवर द मैन्युफैक्चरिंग, वाट एवर द सर्विस सेक्टर, वाट एवर द प्रॉफिट इन द कंट्री ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजिंग, इज इट एक्चुअली इंक्रीजिंग और इज इट एक्चुअली रीचिंग टू द एवरी पर्सन? क्या वो इनइक्वालिटी को कम कर रहा है? इसका मेजर GDP में नहीं होता है। सो इनइक्वालिटी इज़ नॉट मेजर्ड। सेकेंड, इज इट इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग पावर ऑफ द पीपल? इट इज़ नॉट बीइंग मेजर्ड। Similarly, is it increasing the educational level? It is not being measured. Health services not measured. So these things जो किसी भी growth यानी विकास के लिए, that is not only based on numbers. Okay, so विकास should not be based on numbers. It should be based on the holistic development, and that holistic development is development on the economic front, social front, health front, educational front, integral front. Suppose if there is one good increase, a 12% rise in the 20%, 30% के आसपास से आपकी GDP बढ़ रही है, तो you will see wow, it is a very good development, high economic development. But at the same time, what we are doing is we are harming the environment also. And due to the climate change or due to the environmental problem, there has been many diseases, many infectious diseases, cancer causing diseases, lung diseases, heart diseases, many of the diseases. So सारा का सारा पैसा whatever we are earning will directly go into the medical expenses. Then what kind of growth it is? So that is not a parameter. GDP is mere a parameter of a numerology or a real amount of growth, that is growth in the numbers and the production, but it is not the actual measure of the overall growth, the overall holistic development. और इसीलिए
बहुत सारे अलग अलग देश हैं जो केवल और केवल जीडीपी को अपने इकोनॉमिक मेजर पे नहीं मानते हैं. दे डू नॉट कैलकुलेट जीडीपी एज अ विकास दर. ठीक है, बहुत सारे देशों में विकास का मतलब केवल और केवल जीडीपी में इंक्रीमेंट नहीं, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सर्विसेज, इनइक्वालिटी, वुमेन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मोबिलिटी, इन सारी चीज़ों में बढ़ावट हो रही है या नहीं, दैट इज़ ऑल्सो बिंग मेजर्ड. और वो अलग अलग देश अलग अलग इस पे लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रिया. सो ऑस्ट्रिया में एक अलग से पब्लिक होती है एक स्ट्रेटजी जो डिपेंड करता है, उसमें की इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, मटेरियल वेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम. यानी कि जीडीपी के अलावा भी एक अलग से स्टैटिस्टिक रिलीज की जाती है जो कि मेजर्स द मटेरियल वेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, जस्ट लाइक यूनाइटेड किंगडम, देयर इज ऑल्सो अ मेजरमेंट इज that is based on the well-being of the program. That is, the economic development is based on measuring the national well-being program जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था, and how as a whole it is doing. So the growth और डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, that is being measured on the front of national well-being program. जीडीपी से ग्रोथ या डेवलपमेंट को मेजर नहीं करते हैं, दे आर मेजरिंग द राइज, दे आर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ well-being program, which includes a lot of things: health, infrastructure, inequality, education as well. Similarly, Israel is also measuring the well-being. That is how it is sustainable. क्या natural resources को we are harming. So there's from Belgium, Germany, many of the countries are not only using GDP as a figure because they are using something else, which does include the rise in the economic data, but at the same time it also includes rise or decrement or increment in the other human development indexes, that is education, quality of life, assurity of life, environmental. Now there has been a concept of green economy. So how much your economic development is actually costing at the cost of environment, that is also being calculated, and these are all the holistic measure. So GDP अपने आप में किसी देश के विकास का complete मानक नहीं, is not the complete indicator of the development of the country. Yes, it can be an indicator of the economic figures, but it is not the complete indicator of a holistic development, because first, it does not include all the informal sector. Second, it does not include the human aspects. So what kind of development is, even if there is an economic development and there is inequality in the society, then there will be a law and order problem. So all of the money will be spent in the law and order situations. Even if there is an economic development but there are border issues, tension issues, there are environmental issues, okay, erratic monsoon, climate change that led to floods in the many area, droughts in many area, death like COVID-19 disease, it is also a cause of infectious and globalization. So what is the cost of growth at only the economic level? So GDP is a measurement or a measurer or indicator of a economic numerological growth, not as a growth of overall character. So India should also process to move a better enhanced way if we really want to stand in line with the so-called developed countries of the European world. We can also devise a new strategy, a new index, a new parameter for the overall development that should also increase health, education, environment, inequality, gender inequality, etc. for the complete measurement of the growth in our country. Because if we really want at our 100th year, we want to be top 5 countries of the world, we need to start from now onwards. Next important topic is about a promise of renewal. हाल ही में जो G7 की मीटिंग हुई है, now इसमें से कुछ 2-3 important point है. First, it is happening in Cornwall, so that is important for 1 marks point of view, one day exams. Second is they have been decided on a global free speech. So free speech and economic order, pluralism, democratic values, climatic values, जो सारी की सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड, हैज़ एक्चुअली बीइंग एक्सेप्टेड बाय द यूएसए इन द सेम मैनर, बट कीपिंग देयर इंटरेस्ट अलाइव. सो दे डो नॉट वांट, ऐसे तो completely they don't want to show that they are moving anti China, but whatever the moves they are taking, it poses to be against the Chinese policy. Most of them are against the Belt and Road Initiative.
जो चाइना का जो एक बड़ा सा कंटेंशियस प्रोग्राम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू कनेक्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड थ्रू रोड एंड सी पोर्ट्स बाय यूजिंग द चाइनीज फंड्स एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफ डेब्ट ट्रैप, जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, checkbook diplomacy. So they want to counter it, and recently they have decided on three major fronts. First is 1 billion vaccine doses to the world. Second, free and open democracy, जिसमें भारत ने कहा है कि इंडिया इज़ अ नेचुरल अलाई. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि वी आर द नेचुरल अलाई, यानी कि हम G7 के एक नेचुरल अलाई हैं. एंड यू माइट सी इन द रिसेंट कमिंग ईयर्स दैट इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन एज अ G8 because there is a large possibility, especially in the D10 group जहाँ पर 10 टॉप डेमोक्रेसीज को यूज़ करना है. सो आफ्टर G20 there is a huge chances of India getting included in the G8 groups or as a non-permanent member, because from the recent 2 to 3 meetings India has been a continuous invitee in this area. And if the focus is now shifting from the Atlantic to the Indo-Pacific region, India must have to play a bigger role and bigger role. And how we can do it? So by improving our judicial system, pluralistic society, free speech. So government must not do such negative acts like imposing NSAs, seditions. इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए. और फ्री स्पीच, ओपन सोसाइटी के मुद्दे पर we can collaborate with the G7 and provide an alternative to the Chinese model of development. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, thank you. Have a nice day.